Dear brothers and sisters, the seventh phase of elections for the 18th Lok Sabha is turning out to be a crucial watershed moment. With voting over in more than half of the seats, this election is crucial for safeguarding India as a secular democratic republic. The challenge to retain the fundamental character is now posed with severe challenges. The essence of our republic, which embraces the idea of India, rests on the principle of unity in diversity. This concept stems directly from the legacy of our freedom struggle. British colonial rule made it abundantly clear that the freedom of the Indian people from the colonial yoke would be impossible to achieve without uniting the entire population, irrespective of caste, creed, religious denomination, language and cultural diversities. Without this unity, freedom would have been unattainable. The notions of secularism, democracy and social justice were imperative in achieving these goals. The constitution making process ensured that this legacy of the freedom struggle was carried forward and enshrined in the constitution. Parliamentary democracy was crucial to address the diverse loyalty aspirations of our people. This relied on a robust electoral democracy based on the rule of majority. The constitution was non-discriminatory and stood firm by subscribing to the idea of equal and common citizenship. It followed from this premise that holding free and fair elections with a level playing field was crucial to achieving this aspiration and striving for democracy. However, over the last 5 years, with a brute majority in the Lok Sabha for the BJP, there has been a major assault on these fundamental principles of democracy, secularism, personal liberties and the right to dissent. Therefore, to carry forward the battle to safeguard the republic, it is essential to ensure free and fair elections with a level playing field. The constitution makers insisted on creating an independent election commission which is accountable to the people, the political parties and the constitution. In order to have a strong and vibrant election commission that can function independently of the political orientation of the executive, Article 324 was provided investing wide powers in the election commission. Over the years, changes have been brought about by making the commission a multi-member body, and consensus of political parties for the model code of conduct, with the EC given the charge of enforcing this. However, there are growing concerns about the manner in which the elections are actually taking place. Interference of the executive in matters related to the election commission has come to the fore. Concerns about the deployment of technology and its management have cast a shadow of controversy due to the lack of transparency. Therefore, the CPIM demands the members of the EC to be appointed by the President on the advice of a committee consisting of the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of the Supreme Court. Election commissioners be legally debarred from enjoying any office after their retirement, either under the government or as a governor or member of a legislature. State funding in the form of material for recognized political parties, prohibition of corporate funding to political parties. The funding issue has assumed great significance after SC ruling electoral bond unconstitutional. To ensure faith is restored in democracy by appropriately amending the rules regarding the use of electronic voting machine and other units, bring the election expenditure of political parties under the ceiling like that of candidates, ensure
transparency and accountability of electoral expenditure. Jai Hind. प्रिय देशवासियों, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। देश की जनता ने सभी पार्टियों को वोट देकर देखा, लेकिन हमारा देश आज भी विकासशील देशों में ही गिना जाता है। हमसे बाद में आजाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जब तक देश की मूलभूत समस्या जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी इत्यादि का समाधान नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं होता। भारत को विश्व में एक नंबर देश बनाने के लक्ष्य से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। स्थापना के सिर्फ 10 वर्ष में ही आम आदमी पार्टी ने राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल किया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में 2 राज्यों में सरकार है और गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक भी हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के काम देश की जनता को पसंद आ रहे हैं। हम मानते हैं कि सभी को समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जो एक अमीर परिवार के बच्चे को उपलब्ध है। हमने दिल्ली और पंजाब के स्कूलों का काया पलट किया और उन्हें विश्व स्तरीय बनाया। इन स्कूलों में पढ़कर गरीब परिवारों के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बन रहे हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया और बजट का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में आवंटित किया। आज दिल्ली और पंजाब में जगह जगह हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, जहां इलाज, दवाइयां और सारी जांचें पूरी तरह मुफ्त होती हैं। हम पूरे देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें लोगों के जीवन स्तर का सर्वांगीण विकास करना होगा। आज देश में भाई भतीजावाद की राजनीति चल रही है, जो हानिकारक है। देश के चंद उद्योगपतियों के पास ही देश की सारी अर्थव्यवस्था है, सारी पूंजी है और 80% लोग आज बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। हमें सभी वर्ग को समान अवसर देने की ज़रूरत है। हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं के लिए 1000 रुपये की महिला सम्मान निधि, बुजुर्गों के लिए पेंशन और मुफ्त तीर्थ यात्रा और योजनाएं लागू की हैं और लोगों को जिंदगी को आसान का काम बनाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को महंगाई से राहत दे रही है। पूरे देश में दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां आय सबसे ज़्यादा है, महंगाई कम। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अपने सभी वादों को निभाया है। अब पंजाब की भगवंत मान सरकार भी दिल्ली सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए जन कल्याण के काम कर रही है। हम चुनाव के वक्त जो गारंटी देते हैं वो उसका एक शब्द निभाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में हम मुख्यतः 6 गारंटियां दे रहे हैं। पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे जहां पावर कट नहीं होगा। पूरे देश में गरीबों के लिए बिजली फ्री करेंगे। हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार स्कूल बनाएंगे। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसलों पर MSP देंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। देश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विपक्ष को कमजोर और खत्म करने की साजिश हो रही है। सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इससे हमारा देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं कमजोर होंगी। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का रहना भी जरूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी और फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही हो जाएगी। बाबा साहेब ने हमें विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया। इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। भारत को जो राम राज्य की अवधारणा विरासत में मिली है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और देश को एक ऐसा राम राज्य देना है जिसमें हर एक इंसान सुखी हो,
खुश हो, सबको न्याय और समान अवसर मिले, सभी को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिले, सभी को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी और रोजगार मिले। आम आदमी पार्टी देश में ऐसा ही राम राज्य चाहती है। आप सभी से अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए वोट दें। जब वोट देने जाएं तो ईवीएम में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबाएं। सुन, तुझे पता है यूएस और ईयू की कंबाइंड पॉपुलेशन कितनी है? मतलब मुझे क्या पता। यूएस और यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा 97 करोड़ वोटर्स हैं हमारे देश में। इतने सारे वोटर्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और उसका सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शन। Oh my God, 10,000 followers. 55 lakhs. What? 55 लाख ईवीएम मशीन्स, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस। ये है ना अमेजिंग नंबर्स। Really? या सी यार, आई नो। हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ गए यार? छुट्टी पर है सब। क्यों? क्या करें साहब, कहाँ संभलते इतने लोग। 1 करोड़ से ज्यादा ऑफिशियल्स होते हैं ड्यूटी पर हर बार, वो भी पूरी तरह से तैयार। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, देश का कोई कोना नहीं छूटता इलेक्शन कमीशन से, और तुमसे ये लोग नहीं समझते। क्या बात है साहब। बेटा, अभी अभी तो इंडिया आए हो, आते ही कार की बुकिंग हो लगता है। हाँ भाई, कार तो बुक हो गई तेरी, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा। कब से इतने सारे कैंडिडेट्स, इतनी सारी पार्टियां, फिर भी इलेक्शन का रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाता है, और वो भी बिना किसी दिक्कत के, है ना कमाल। और तुम कह रहे हो कि हमारे छोटे से काम के लिए टाइम लगेगा। वो इलेक्शन कमीशन है नहीं। रात का पल देश का। मंजुला, ठाकुर जी, परवेज, सुरेश और मुझ जैसे 11 लाख से भी ज्यादा ऑफिसर्स करते हैं जोश से भरा एक लंबा सफर, ताकि आपसे ये मौका छूट ना जाए। चुनाव का पर्व देश का गर्व है, इसका हिस्सा जरूर बने। भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी, और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू
बोलने वाले वर्मा जी। पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे। पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे। मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला। मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला। रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू। कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से साबू। वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा। सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी। पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। हेलो, हाँ बोल। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही यार। ऑटो, मैं तुझे पहुंच के फोन करता हूँ ना। बस अड्डा। थोड़ा जल्दी चलना। हाँ भैया। नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार। तू मेरी बात सुन। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैनेज क्यों नहीं कर लेते यार? भैया 5 मिनट रुक सकते हैं क्या प्लीज? क्या? अच्छा ठीक है, पर जल्दी। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? यार तुझे पता है कि मैं 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, उसके बाद भी तू मुझसे ये सब बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? तुझे मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ कल। हाँ किधर? वो भैया वोट डालने गए थे। हमारा वोट भी तो जरूरी है, जैसे आप अपना वोट दिए होंगे। नहीं, तुम चलो यार, मेरी बस मिस हो जाएगी। जी भैया। अरे चाचा आप आ गए? गांव में कोई दिख ही नहीं रहा। कहाँ गए सब? आपको नहीं पता आज वोट का दिन है, सारे वोट देने के लिए गए हैं। वो भैया वोट डालने गए थे। सारे वोट देने के लिए गए हैं। हमारा वोट भी तो जरूरी है। चाचा आप कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर में। चुनाव का दिन छुट्टी का दिन नहीं, ये जिम्मेदारियां निभाने का दिन है। The most important pledge is the pledge to vote. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games, all come later. First duty, voting. Check your name in the voter list. Log on to the voter service portal. We will check everything. Election date, voting booth, candidate details. Only then we will cast our vote. So together let's fulfill our duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So, come out and vote. Why vote? My duty.
My vote, my duty. नमस्कार। जब से कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, भाजपा और प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हमने बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी और गरीबी से लड़ने की बात की है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने महिला, किसान, दलित, आदिवासी के उत्थान की बात की है। 5 न्याय और 25 गारंटियों से हम युवा, नारी, किसान, श्रमिक और भागीदारी दिलाने का वचन देते हैं। हम मन की बात नहीं, जन की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी काम के आधार पर नहीं, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं। ध्रुवीकरण और फर्जी राष्ट्रवाद भाजपा के प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों की आड़ में वो देश की समस्याओं से निपटने में और अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा लगाकर भाजपा को भ्रष्टाचारी युक्त बना दिया है। जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उन्हीं को भाजपा की वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से धोकर साफ दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से संगठित लूट और कानूनी डाका डाला गया है। झूठ और लूट ये भाजपा सरकार के 2 अस्त्र हैं। भाजपा की मौजूदा सरकार अकड़ और अहंकार से भरी है। देश पर 220 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया, 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर दिया, देश के 45 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया, गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया, हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया, इलाज और अस्पताल को महंगा कर दिया, रेलवे किराए को 100% बढ़ा दिया। देश में नफरत का माहौल बनाकर प्रेम और भाईचारे को खत्म कर दिया। देश की सीमाओं पर ढील बरती, चीनी घुसपैठ को नाकारा, लाल आंखें दिखाने के बदले चीन से व्यापार को दुगना तिगना कर दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री बनाम मुद्दा होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का चेहरा और दूसरी तरफ जनता के मुद्दे। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए समर्पित है। कांग्रेस लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करना चाहती है। देश को तानाशाही के रास्ते पर जाने से रोकना चाहती है। कांग्रेस की गारंटी की वारंटी भी है। हमने जो गारंटी हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में दी, उसे पूरा किया। हम झूठ और जुमलों को सच्चाई और मोहब्बत से हराना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि देश की जनता बदलाव लाएगी, कांग्रेस की नीतियों पर फिर विश्वास जताएगी। भाजपा को देना पड़ेगा हिसाब, हाथ बदलेगा हालात। 400 पार के नारे लगाने वाले से मैं कहना चाहता हूं कि दिशा भूल करने वाला ये ड्रामा बंद करें। सच्चाई यह है कि सोना हुआ 72,000 रुपये पार, डॉलर 83 रुपये पार, पेट्रोल 100 रुपये पार, किसान की गेहूं नहीं बिक रही 2400 पार, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। पिछले 10 वर्षों में हम दबाव तंत्र की राजनीति भी देख रहे हैं। सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का पुरजोर उपयोग हो रहा है, लेकिन आज़ादी की जंग में इनकलाब का झंडा उठाने वाली कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। इसीलिए मेरी आप सब से अपील है कि न्याय और लोकतंत्र की इस लड़ाई में हमारा साथ दें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तथा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए बढ़ चढ़कर वोट दें। जय हिंद। Heartiest greetings to all my fellow countrymen. I, Gaurav Bhatia, a committed Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, stand before you to articulate our party's vision for the nation and showcase the accomplishments we have attained during our tenure in government over the past decade. The 2G and 3G spectrum scam under the UPA government led to significant financial losses and raised concerns regarding spectrum allocation transparency. In contrast, Prime Minister Modi's administration has prioritized transparency and swift technological progression
at the 7th edition of India Mobile Congress, IMC 2023, PM Modi highlighted India's leadership in 6G development and celebrated the successful deployment of 5G with 4 lakh 5G base stations, covering 97% of the cities, 80% of the population. This underscores India's dedication, led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji, to positioning itself as a leading force in future technological advancements on a global scale. A decade ago, the notion of digital payments and a digital economy seemed like a distant dream in India. In the year 2023 alone, transactions exceeding 182.2 lakh crores were facilitated through UPI. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, our nation has experienced an extraordinary surge in digital transactions, increasing by over 100 times, from 127 crores in 2013-14 to 12,735 crores in 2022-23. The UPI technology, pioneered in India, has garnered international recognition, being embraced by several countries, including developed nations like France, Singapore, and the UAE. This exemplifies our unwavering commitment to establishing India as a global leader in technology and innovation. Dear citizens, a key priority for our government has been to bridge the digital gap and ensure universal access to technology and the internet. Through ambitious initiatives like Digital India, we have made significant strides in bringing affordable internet and digital services to even the remotest corners of our nation. We have successfully connected millions of rural citizens to the digital sphere, empowering them with knowledge, education, and access to essential government services. Contrastingly, the Congress-led UPA government failed to acknowledge or keep pace with global advancements in technology. Under the leadership of PM Modi ji, our government has pursued a development-centric approach across all sectors over the past decade. The Congress has consistently obstructed the nation's progress, lacking a coherent vision for our country's growth. Respected citizens, I want to address a concerning trend in our digital landscape, the rise of deep fake technology and its potential for malicious manipulation. One particularly alarming instance of deep fake misuse occurred when attempt to circulate a fabricated video purportedly depicting our Honorable Union Minister Shri Amit Shah ji. It is deeply troubling that certain elements within the political spectrum have stooped to such despicable tactics in their relentless pursuit of power. Dear fellow citizens, we call upon each one of you to keep contributing to this journey of discovery and exploration as we unveil the riches that India holds. Let us all come together to support Modi ji in his goal to bring India back to its pinnacle. We urge our cherished citizens to step forward and vote for Lotus symbol to reaffirm your unwavering support for Modi ji's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. We reiterate our commitment to the youth and every individual in India. The dreams of 140 crore strong Modi ka parivar will be fulfilled in our third term. Jai Hind. जय भीम। मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व समतामूलक एवं कल्याणकारी संविधान के तहत देश में इस समय 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख
बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी पार्टी बीएसपी यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धनबल के सहाय पर नहीं बल्कि मेहनतकश समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर पूरी जी जान से यहाँ चुनाव लड़ रही है ताकि अच्छा रिजल्ट लाने के बाद देश के बदले हुए हालात में केंद्र की सत्ता में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी के जरिए बहुजनों का व्यापक हित व कल्याण सुनिश्चित कर सके। और इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ जारी सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य व इस कार्यवां से जुड़े हुए हैं। इन सबका लक्ष्य बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जिससे सामाजिक परिवर्तन व गरीबी एवं बेरोजगारी आदि दूर करने वाली आर्थिक तरक्की के तमाम बंद दरवाजे खुल जाते हैं और फिर यहाँ उपेक्षित समाज अंत में शोषित, उत्पीड़न व उपेक्षा से मुक्त होकर लेने वाले से देने वाला समाज बन जाए, जो समतामूलक समाज का आधार है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के इस निर्माण कार्य में लगाना है ताकि वर्षों से केंद्र व राज्य सरकारों की चल रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि के कारण यहाँ खासकर अपार गरीबी, बेरोजगारी, ज़बरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं आदि की जो दयनीय स्थिति व अति दुखद माहौल है, उससे कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी सभी करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं, जबकि समाज के सबसे गरीब एवं पिछड़े लोगों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समाज के लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी है, क्योंकि उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विशेषकर सरकारी नौकरियों व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अथक प्रयासों से की है, उसको लगभग निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया है। उनकी भर्ती के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं, फिर भी बैकलॉग की भर्ती नहीं करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसी प्रकार केवल सामाजिक जुल्म जाति ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में जातिवादी द्वेष व भेदभाव होना आम बात है, लेकिन इसकी आलोचना करते रहने का समय अब नहीं है, बल्कि
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए इन्हें संगठित होकर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में अपनी सक्रिय व प्रभावी हिस्सेदारी के जरिए सत्ता में अपनी ईमानदार व मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी प्रगति का मार्ग यहाँ आगे बढ़ेगा। जैसा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित व जन कल्याणकारी तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के मामले में बेहतरीन सरकार कई बार दी है तथा जिसकी याद लोगों के दिलो दिमाग में लगातार ताज़ा भी है। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की यही विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट खरीदा ना जा सके, कोई वोट लूटा ना जा सके, कोई वोट पड़ने से रह ना जाए। अर्थात कुल मिलाकर देश के लोकतंत्र व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र संविधान की रक्षा पूरे जी जान व अपने हर वोट की शक्ति से करनी है। और अब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले जी, श्री नारायण गुरु जी, छत्रपति शाहू जी महाराज जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को शत शत नमन करने के साथ ही यहाँ पुरजोर अपील है कि बीएसपी के लोकसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन को दबाकर भारी वोटों से जिताने का काम करें। जय भीम, जय भारत। जिम डेली 1 से 2 घंटा। अरे वाह, पर रोज क्यों? बॉडी बिल्डिंग, टाइम तो लगता है। स्क्रीन टाइम तो काफी है आपका। बिल्कुल, अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो मिलती है और एंटरटेनमेंट भी। पर इतना टाइम? नॉलेज बिल्डिंग, ये भी तो जरूरी है। आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। सही कहा आपने। पूरे दिन रील्स बनाओ, कैप्शन चुनो, पोस्ट करो, स्टोरीज अपलोड करो। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली। पर इतना कुछ किस लिए? इमेज बिल्डिंग, व्हाट एल्स? पर वोट नहीं डाला आपने। वोट क्या फायदा? नेशन बिल्डिंग। और हाँ, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। ख्याल बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। सुन, तुझे पता है यूएस और ईयू की कंबाइंड पॉपुलेशन कितनी है? मतलब मुझे क्या पता। यूएस और यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा 97 करोड़ वोटर्स हैं हमारे देश में। इतने सारे वोटर्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और उसका सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शन। Oh my God, 10,000 followers. 55 lakhs. What? 55 like EVM machines, 10 lakhs से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस। ये है ना अमेजिंग नंबर्स। Really? Yeah, see? Oh yeah. I know. हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ गए यार? छुट्टी पर है सब। क्यों? क्या करें साहब, कहाँ संभलते इतने लोग। 1 करोड़ से ज्यादा ऑफिशियल्स होते हैं ड्यूटी पर हर बार, वो भी पूरी तरह से तैयार। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। देश का कोई कोना नहीं छोड़ता इलेक्शन कमीशन से, और तुमसे ये लोग नहीं समझते। क्या बात है साहब। बेटा, अभी अभी तो इंडिया आए हो, आते ही कार की बुकिंग हो लगता है। हाँ भाई, कार तो बुक हो गई तेरी, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा। कम से इतने सारे कैंडिडेट्स, इतनी सारी पार्टियां,
फिर भी इलेक्शन का रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाता है, और वो भी बिना किसी दिक्कत के, है ना कमाल? और तुम कह रहे हो कि हमारे छोटे से काम के लिए और टाइम लगेगा? वो इलेक्शन कमीशन है, मैं नहीं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।